फिर आपको तो आज बहुत ही खुशी हो रही होगी। बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, रियलिटी बन रहे हैं। एंड आई गिव क्रेडिट टू दी प्रेजेंट जो मैनेजमेंट है इसकी सोसाइटी की, उनको कि उन्होंने मिक्स जो करा है ओल्ड एंड न्यू यंग एनर्जेटिक पीपल। मुझे लगता है कि आई एम वेरी होपफुल के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू सर। याना बापजी PRSI के सेक्रेटरी जनरल नेशनल लेवल के हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत करते हैं शुभम चैनल में, और साथ में जम्मू कश्मीर की धरती पर भी आपका स्वागत है। Thank you. We are very happy, especially the National Executive, that is National President, Secretary General, Secretary Treasurer, and all the 4 National Vice Presidents and the National Council members of the country that represent the PRSI from different chapters. We are very, very happy because the youngest chapter, people of all the professionals, they have formed a chapter, and today we are going to see the launch of this youngest chapter. And we are happy. It is this chapter is being led by Professor Saumitra, and then duly ably assisted by Dr. Archana, Dr. Ravia, Dr. Monisha Kadri, and other luminaries. They are all educators, media educators, and public relations practitioners as well. We are very happy to see. We are happy to come over here to witness this grand launch of Public Relations Society of India, Jammu chapter. Thank you, sir. Thank you, sir, for information. I want to tell you about the Jammu Kashmir chapter, that it will be a very good vibes in Jammu and Kashmir positively. But I want to ask you, sir, about the Public Relations Society of India, that how can it deal with the students and professionals in the society for the public relations in positive way? Public Relations Society of India is a pan-India organization. It has branches in every city of the country. It was founded in the year 1958, almost it is 65 years old. All the members are drawn from various organizations, maybe government departments or public or private sector organizations, industrial establishments, corporate organizations. And we have also a category called student members, students pursuing journalism, mass communication, public relations, advertising. They are taken into PRSI as student members. As they complete, they can become the regular members of the chapters wherever they are registered and located. Sir, some results of PRSI in national level, else Jammu and Kashmir, because it is newly here. Yes, we were lacking a chapter in this part of the country because Kashmir was always not considered as close to the heart of India. But now, since that hurdle has been removed, and these people here, they have conceived and almost on the and we have reached the day of launching the chapter. Definitely, this is an addition to the chapter, addition to the National Council of Public Relations Society of India. Sir, results of Public Relations of India in other states. Results, you mean, this is a professional organization. All professionals, public relations practitioners, be it whatever is the designations, they are liaison officers or communication officers or information officers, whatever is the nomenclature, if an officer is in charge of dissemination of information and communication, that particular individual is taken as a member of Public Relations Society of India. We have almost 30 chapters throughout the country, and our chapters are exceedingly doing well. Sir, what about you say about the program today is organizing here? Today in the forenoon, by the Honorable Minister, this is being launched, and with the core members and office bearers of the chapter, and many luminaries are coming, and the representatives of the PRSI from different chapters, say from Dehradun, Shimla, Jaipur, Ahmedabad, Delhi, Chennai, Visakhapatnam, Tirupati, Amaravati, and all those places. The representatives have already come here. They are going to witness the launch, and thereafter we have a national council meeting. National council meeting in the sense they are the representatives of the chapters, just like members of parliament. These NC members are the representatives representing each chapter. All have come. About 60 NC representatives have come from all over the country. What will be your last message to the Jammu and Kashmir people? Just now, it is the youngest chapter as far as our
this thing is concerned, and definitely this is going very fast, and this chapter will definitely flourish and make a mark in the history of Public Relations Society of India. हमारे साथ जम्मू के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ओपी शर्मा सर हैं। सर, PRSI लॉन्च हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आप काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म में हैं, और कितनी ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर के अंदर इस चैप्टर के खोलने की? मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि जम्मू कश्मीर का चैप्टर ये दोबारा लॉन्च हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि एक उस आदमी से जो साइल ऑफ द साइल है, मैं जम्मू कश्मीर का डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नहीं मानता, और ये तो इंडिया का अब हो गया, सन ऑफ द इंडिया है, तो उनसे ये चल रहा है, लॉन्च हो रहा है। मैं तो एसोसिएट रहा हूँ इस पब्लिक रिलेशन सोसाइटी से। मैं गवर्नमेंट में था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, जेके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सेटअप दिल्ली में जो है, आई वाज देयर इन दिल्ली। तो मैं उस वक्त इन 80s आई वाज मेंबर ऑफ दिल्ली चैप्टर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का, दिल्ली चैप्टर का। तो उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर में भी यहाँ रही, अब फंक्शनल नहीं रहा, तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन हुआ करते थे, SP साहनी, वो इसके प्रेसिडेंट हुआ, चेयरमैन हुआ करते थे, और उस वक्त भी फंक्शनल था। अब ये लॉन्च होना, आई थिंक इट विल कम विद मोर एनर्जी, मोर इंथुसियाज्म क्रिएट होएगा, और नई फ़िज़ा में नई उमंगें लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी होपफुल, एक्सपेक्टेंट हूँ कि इसका इम्पैक्ट यहाँ जम्मू रीजन में भी बहुत ज़्यादा होएगा। जम्मू कश्मीर और इवन लद्दाख को भी इंक्लूड करके ये चैप्टर बड़ा काम करेगा। देखिए, ये दिस पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ वेरी सेंसिटिव फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें पब्लिक रिलेशन का काम जो है, पब्लिक को साथ लेना, और हमारा अब टास्क है प्रेजेंट रजीम का कि इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सलरेट करना। लोगों की भी बड़ी ज़रूरत है और गवर्नमेंट की भी बड़ी तमन्ना है इस वक्त करने की कि हम इसे और तेज़ी से करेंगे। इसमें रिज़ल्ट तभी आएंगे जब पार्टिसिपेशन लोगों की ज़्यादा होएगी, एंड पब्लिक रिलेशन सोसाइटी कैन प्ले ए वेरी क्रिटिकल रोल इन इट। मेरा ये है सोचना, और ये मैं मानता हूँ ये जो टीम इस वक्त है, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, और ये अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। और जम्मू कश्मीर में, और आई बिलोंग टू जम्मू, आई एम ब्रॉट अप इन जम्मू, तो मुझे तो लगता है कि हाँ, मैं अपनी पर्सनल बात करने के, अगर आप मेरे को इजाज़त देंगे, तो मैंने आई डिड जर्नलिज्म इन 63-4 from Punjab University Jammu. I was the first from Jammu to go for formal training in journalism. उसके बाद मैंने MA हिस्ट्री में करा, और गवर्नमेंट में भी रहा, और एक न्यूज़पेपर जम्मू का इंग्लिश का है, उसमें मैं गवर्नमेंट के बाद उसमें मैं ब्यूरो चीफ रहा। उसके बाद मैंने अपनी स्टार लाइन सिंडिकेट सर्विस स्टार्ट करी, और उसके साथ साथ मेरे आर्टिकल्स छपते रहते हैं। अभी भी, आज भी मेरा बुक रिव्यू छपा हुआ है, वन ऑफ द डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू, लीडिंग मोस्ट जो जम्मू का है। तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी उस वक्त भी मैं एक्टिव था, एंड इन पब्लिक रिलेशन जो जर्नलिज्म में मैंने करा, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। तो मुझे बड़ा पैशन है पब्लिक रिलेशन से। अब भी मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। जब ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई तो मैंने मेंबर बना यहाँ। तो मतलब कश्मीर से डॉक्टर मोनिसा कादरी मैम हमारे साथ जुड़ेंगी, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हवाले से आज के प्रोग्राम में आई हैं। पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।
आपसे जानने की कोशिश करूँगा मैम, जो PRSI लॉन्चिंग आज हो रही है जम्मू कश्मीर चैप्टर के अंदर, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक और गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं उसको पॉजिटिव वे में बढ़ाने के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित होगा, और ख़ास तौर से कश्मीर की बात करें उस पर आप जैसे हम जानते हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका एक बहुत अहम रोल बनता है। पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर हम जो स्टूडेंट्स कहते हैं ख़ुद को पब्लिक रिलेशंस के, उनको एक अहमियत देना नेशनल लेवल पे। अब वही चीज़ जो है वो हम लोकली रीजनली कर रहे हैं थ्रू दिस चैप्टर। अभी तो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं जम्मू चैप्टर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और आगे हम कश्मीर का जो चैप्टर है स्पेसिफिकली वो भी आगे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे कंटेक्स्ट में, बिकॉज हमारे पास जो है अशुभ वारिया के हाउन लायक कशीर मज अगर तुम कत करो टूरिज्म या तुम करो कत लुकन हिज जो इंसान है, यू नो देयर इज सो मच टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ कल्चर, पीपल, नेचर, टूरिज्म, एंड उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो पब्लिक रिलेशंस क्या करता है, ये ब्रिजेस बिल्ड करता है, ये लोगों को कनेक्ट करता है आपस में, ये कम्युनिकेशन करता है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब थोड़ा सा ऐसा एक स्टेप जो है वो हम ले लेंगे और एक नेशनल लेवल का जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ बनेगा, तो उसकी वजह से इस जो फील्ड को जो पब्लिक रिलेशंस है उसको थोड़ी सी अहमियत मिलेगी, उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे वहाँ पे, और लोगों के बारे में लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस भी बिल्ड होगी। मैम आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जो पब्लिक रिलेशंस है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, वो किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ज़रूरत है जिससे पॉजिटिव वाइब्स आ सकती हैं? आजकल के दौर में पब्लिक रिलेशंस ऐसा फील्ड है जो सिर्फ कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि गवर्नमेंट या जो आप कहते हैं सिटीज़न कम्युनिकेशन वहाँ तक भी पहुँच चुका है। और क्यों नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहे होते हैं या जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कई बार आप जब कोई चीज़ के बारे में नहीं बात करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि आप बात करें और आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएं। और अभी अगर आप देखेंगे चाहे फ्रेमवर्क, चाहे DIPR है या जो इन्फॉर्मेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें हर एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है एंड लोगों तक ऐसी बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। फिर चाहे स्कीम्स की बात है या अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर नेप में एजुकेशन PR से बिलोंग करती हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ, और अभी हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल नेप के बाद स्किल्स पे बहुत फोकस है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत फोकस है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और हम इनको हर एक सेक्टर में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक रिलेशंस कहीं इससे दूर नहीं है। मैम काफ़ी सारी जो पॉलिसी स्कीम्स गवर्नमेंट की जानिब से पब्लिक के लिए आती हैं, और जो भी उन चीज़ों को ना कभी कोई एक एस्पेक्ट से लेकर के लोगों तक पहुंचाया जाता है, और PRSI जो जम्मू कश्मीर चैप्टर है पूरी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पॉजिटिविटी के साथ पहुंचाने में कितना रोल निभाएगी? ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, और इनके जो कोर वैल्यूज़ हैं वो आप अगर देखेंगे वो नेशन बिल्डिंग में बिलीव करते हैं और हम कम्युनिटी स्पिरिट में बिलीव करते हैं। अब वही चीज़ का रिफ्लेक्शन हमारे सोसाइटी में भी होगा, और जम्मू कश्मीर तो कल्चरली बहुत रिच है, हमारा एक बहुत अपना हेरिटेज पास्ट रहा है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो बहुत रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है। तो नजरीन, हमारे साथ जर्नलिस्ट दिनेश सर हैं, प्रेस क्लब जम्मू के जनरल सेक्रेटरी। इनसे भी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हवाले से जम्मू कश्मीर चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस के रिलेटेड आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका खैर मकदम। थैंक यू। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी और कितनी देरीना डिमांड थी कि इसको यहाँ पे इनॉग्रेट और लॉन्च किया जाए? देखिए, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो ना काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में फंक्शन थी। पहले क्या थे, सतीश सानी जो बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं वो इसके जम्मू कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष रहे हैं, बाद में डिफंक्ट हो गई, इनएक्टिव हो गई, अब दोबारा इसको रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर आप समझते हैं कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन का फ़्लो और इन्फॉर्मेशन जो है, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये जनरल मासेस तक कैसे पहुँचे, ये PR एजेंसीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और प्रेस क्लब ने इनके साथ कोलैबोरेशन इसलिए किया है कि प्रेस क्लब एक जर्नलिस्ट की बॉडी है और PR एजेंसी जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। तो इन्फॉर्मेशन को जो
मतलब पब्लिक में मासिस में स्प्रेड कर सकता है, वो जर्नलिस्ट का रोल होता है, और जर्नलिस्ट सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए हमने इनसे कोलैबोरेशन किया ताकि जो इनकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो वो हम प्रेस क्लब के माध्यम से जर्नलिस्ट मासिस में स्प्रेड करें और JNK में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। ये हमारा मकसद है। देखिए, जिस तरह से अब ये चैप्टर यहाँ पे खुलने जा रहा है और आज अब तो फॉर्मली इसका लॉन्चिंग भी होगा। अब ये आप बताइए जो भी यहाँ पे इस तरीके से जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की या जो रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक होता था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती थी जो जर्नलिज्म में काफ़ी सारे ऐसे भी पोर्टल्स थे जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। अब जब ये जो चैप्टर खुल रहा है तो अब इनका आपस में तालमेल कैसे रहेगा जर्नलिस्ट के साथ, और कितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में जम्मू कश्मीर में काम करने का? जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि हमारे पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो कुछ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कहते हैं कि फेक इन्फॉर्मेशन भी फ्लो हो रही है। तो अगर PR जो एजेंसीज़ हैं वो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं तो ऑथेंटिक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? उपेंद्र शर्मा। सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज पूरे देश भर के जो डेलीगेट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं। और जो मेरे दिनेश जी ने कहा कि जो एक पॉजिटिव और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जाएगी, तो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो जाना ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के माध्यम से। सर, एक तो स्कीम्स के रिलेटेड तो मान लेते हैं बहसते जर्नलिस्ट आप भी और हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन अगर जैसे ये सोसाइटी अब खुल रही है पॉजिटिव वे में तो हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में एक वो कंसेप्ट वो गोदी मीडिया टाइप का आता है उस पे, और इसका कुछ आप कंसेप्ट लोगों को क्लियर करें। देखिए, ये अभी प्री एजम्पशन होगी कि हम इन चीज़ों को लेकर कि अभी एप्रीहेंशन जो दिमाग में कि नहीं गोदी मीडिया हो, ये भी आप कोई लेफ्टिस्ट जो सोच के लोग हैं उन्होंने इस ठीक है ना टर्मिनोलॉजी को दिया। मुझे नहीं लगता कि इसको आज ठीक है ना जो एक शुरुआत के दिनों में इस पर तरह का सोच रखनी चाहिए कि नहीं गोदी मीडिया और ये, यानी कि पब्लिक रिलेशंस जो है पॉजिटिव वे में काम करेगा। जी जी। तो हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं अनिल सौमित्र सर, प्रोफेसर अनिल सौमित्र सर। इनसे आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। सर, पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं शुभम चैनल। धन्यवाद। आज के दिन पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका जो जम्मू कश्मीर चैप्टर है उसका लॉन्चिंग है, शुभारंभ इसको कह सकते हैं। और इस अवसर पर, इस मौके पर भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर, मुद्दे पर, विषय पर चर्चा होगी। डिस्कशन है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। सरकार की जो संचार की व्यवस्था है, सरकार का जो कम्युनिकेशन है और उसमें पब्लिक रिलेशन का क्या रोल हो सकता है, उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। हम सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और इस कार्यक्रम में देश भर से लॉन्चिंग और इस डिस्कशन में देश भर से जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल काउंसिल है उसके देश भर के डेलीगेट्स आए हैं। तो लगभग 50 सदस्य भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जैसे कि सर कहाँ से और किस किस इंस्टीट्यूट से? जैसे उत्तराखंड से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सारे लगभग बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी। तो अमूमन सारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। कहीं से कुछ ज़्यादा आएंगे, कहीं से कुछ कम। सर, जम्मू कश्मीर चैप्टर जो खोलने जा रहा है इसके लिए यहाँ पे किन किन लोगों को मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया जम्मू कश्मीर के चैप्टर में? जम्मू कश्मीर के चैप्टर पे यहाँ के जो सदस्य हैं उनको, और पहले से भी बहुत सारे कई सारे सदस्य पुराने हैं तो वो भी आ रहे हैं, नए लोग भी जुड़े हैं वो भी आएंगे। तो जम्मू यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जम्मू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी आ रहे हैं, कश्मीर श्रीनगर से भी कई साथी आए हैं। यहाँ का भारतीय जनसंचार संस्थान है, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के फैकल्टी, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो, कॉरपोरेट हो
या एकेडमिक्स हो या सरकार का प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे क्षेत्रों के जो पब्लिक रिलेशन के काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोग अभी वर्किंग हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो देश और समाज की सेवा में अपने हुनर का, अपने जो उनकी एक्सपर्टाइज है उसका वो उपयोग कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर पीएल के मूर्ति साहब हैं और इनसे भी थोड़ा सा पूछने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन है PRSI विशाखापट्टनम चैप्टर, नेशनल काउंसिल मेंबर है। सर, आपका स्वागत करते हैं और जम्मू की धरती पे भी स्वागत करते हैं। Thank you. Thanks for the Jammu visit. So I am Dr. PLK Murthy, Chairman Visakhapatnam chapter. So I am associated with chapter for the last 20 years to 2 decades. So PRSI is all with those who are practicing public relations and public relations students and all PROs in the country. So we have more than 30 chapters in India. So another chapter is now coming to Jammu. So it's a very good news for the Jammu. So we are penetrating our PRSA journey to all the entire country, and we have every year we have a PRSA national conference is there. Recently we concluded the 44th national conference in Bhopal. So likewise all over India, all the chapters will meet yearly 4 times will meet, and all the members will meet in yearly once at one place, and we have to sharing our views regarding the public relations and regarding communications, latest communication trends in Vishaka, in all over India. So this is a good platform to, first of all, to the students, those who are studying in journalism and mass communication, and this is the best platform to become a best PROs in the country. They know what is going on in and around. We have visited already several times in IAMC Delhi also. So we have attended some meetings in IAMC Delhi. So like that, Jammu chapter associated with IAMC Jammu, it's a good news for us, and we have a long journey. Sir, with PRSA. What will be the importance to relate public with government and the positive ways to circulate in the platforms that can be circulated positive thinkings and vibes in Jammu and Kashmir? Yeah. Nowadays, Jammu people are thinking to fear to visit Jammu Kashmir. Now, from yesterday onwards, I visited. It's like free. So we had yesterday we went to Katra. We went to Mata Vaishnav Devi temple. It's a very nice experience, and people should come and visit this place. Here Jammu people are very cooperating, and good PR is there. So people should visit Jammu. Thank you, sir. Thank you.